Hey guys, welcome back to this channel. Today we are going to do the complete chapter of class 9th first chapter maths number system. So what is numbers? Number is any value which represents a particular quantity. Do you think this is right? Yes, this is right. So generally when we think about number we came across 1, 2, 3, 4, and so on. What is this? It is nothing but counting. What is counting? It is nothing but natural numbers. So, what is natural number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on is called natural numbers. So, just and it is represented by n. You can see here it is also written at. If you don't understand, you can take screenshot of this. So, if we subtract 5 minus 5, how we represent this in the sets of natural numbers? Dance. When we subtract 5 minus 5, it comes 0. It is not a natural number. Then what is this? What is 0? How can we represent 0 on number line? 0. When we add 0 to sets of natural numbers, it becomes whole number. It is represented by W. Is it clear to all? You can also take its screenshot and write its definition in your notebook. So if I want to write minus 1, minus 2, minus 3 in the number line sets, how can we write this? What are these all positive and negative with 0? These numbers called. These are nothing but integers, and integers are represented by Z. You can see it is written here also. You can take screenshot to do in your notebook. So can we write between 1 and 2? Is there any number between 1 and 2? How can we write this in the set of whole number? In the set of natural numbers, it cannot be written. In the set of whole numbers, then also it cannot be written. In the sets of integer, it cannot be written. So what do we call which is between two numbers like 2 and 3? What is between this? How can we denote this? This can be denoted by rational numbers. We call these middle numbers between any number rational numbers. It can 2 is also a rational number. How? You can write it as 2 by 1. So what is rational number? Any number R which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equals to 0. तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं. इसका मतलब तो ये भी है कि नेगेटिव नंबर्स भी है रेशनल नंबर्स. यस दे आर. तो अब क्या हम सारे नंबर्स के साथ हैं? अब नंबर लाइन पे हम सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, मैं आपको कहूँ कि आप √2 को रिप्रेजेंट करो. कैसे करोगे आप रिप्रेजेंट? आपको तो पता ही नहीं है. आप बोलोगे मैडम ये तो आता ही नहीं है किसी पे भी. ना ये रेशनल नंबर है, ना ही होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही इंटीजर है. तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर्स है. इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P by Q के फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं और दोनों इंटीजर होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है. आप देख ही सकते हो, एक इरेशनल है, एक रेशनल है. आप नाम से भी इसका डिफरेंस बता सकते हो. तो जब अब तो हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. अब तो कुछ नहीं बचा. क्या ये सही है? तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में देखोगे कि कितनी हद तक ये करेक्ट है. तो जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होता है, मतलब दोनों जब साथ में होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स. तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है. रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट होते हैं. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर. इट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर. तो मान लो अब हमें रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो मान लो हमने ले लिया √x कोई भी एक वैल्यू हो सकती है. मान लो इसको √2 ही मान लो. अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. एक पॉइंट लेना है A और उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है और हम उसको नाम दे सकते हैं AB और उसको हम x यूनिट्स के बराबर कर देंगे. हम जब √2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम उसको 2 यूनिट्स के बराबर कर देंगे. अब जो AB लाइन है हमें उसको 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है और उसको हम BC कहेंगे. ठीक है.
अब ए सी का मिड पॉइंट हमें ढूंढना है और हम उसको क्या लिखेंगे, ओ लिख देंगे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, एनी नंबर यू कैन राइट देयर, एनी नेम, एनी नंबर, एनी अल्फ़ाबेट यू कैन राइट देयर। फिर ज़ीरो को एज सेंटर लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा ओ सी, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बी से जो कि उस सेमी सर्कल तक जाए और हम उसको देंगे नाम डी, ठीक है। तो ये जो लेंथ, जो यहाँ बी और डी की जो लेंथ है ना, वो हो जाएगी √2। हमने √2 का एग्जांपल लिया था, आप कोई भी नंबर का ऐसे कर सकते हो। मान लो आपको √3 करना है तो आपकी x यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट प्लस 1, ऐसे ही आपको करना है। अब आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, तो आप अपना कंपास लो और बी और डी तक पहुँचाओ, फिर वहाँ से आप एक ऐसे आर्क बनाओ सेमी सर्कल की तरह, ऐसे बनाओ और फिर वो जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पे आपका √2 होगा, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ आया हो तो आप इसके और वीडियोस देख सकते हैं, मैं एक और वीडियो इस टॉपिक पे अच्छे से डीपली बनवाऊँगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमने तो रेशनल नंबर्स की तो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और उस पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देखा था, तो हमें तो रेशनल ही मिलता है। तो इर्रेशनल्स में भी क्या सेम है, चलो देखते हैं। जब हम एक रेशनल और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करें तब हमें हमेशा इर्रेशनल ही मिलेगा। मतलब जब हम इर्रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इर्रेशनल मिलेगा। हम इर्रेशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सेम होना चाहिए, मतलब हमने √3 को हमें √3 से ही मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा रेशनल। अगर हमने √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें √6 मिलेगा जो कि रेशनल नहीं है, वो भी इर्रेशनल है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। हम जब ऐड करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को तब भी इर्रेशनल्स ही होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल होंगे, डिवाइड पे भी रेशनल या फिर इरेशनल कोई भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज़। हमने इरेशनल नंबर्स के लिए तो पढ़ी थी, अब इरेशनल्स की भी कोई आइडेंटिटीज़ होती है क्या, तो चलो देखते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी होगी √AB जो कि इक्वल्स टू होगी √A√B के बराबर। फिर हमारे है √A/B तो वो इक्वल्स टू होगी √A/√B। आप इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद कर लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो जब हम √A + √B करेंगे और √A - √B करेंगे तो क्या आंसर आएगा, A² - B²। ये सेम आइडेंटिटी है, जैसी रेशनल की थी वैसी ही रेशनल की भी है। A + √B करेंगे और A - √B, तो सेम यही आइडेंटिटी हम लगा देंगे, A² - B। और नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है √A + √B √C + √D। तो ये किसके इक्वल होगा, √AC √AD √BC √BD। आप देख सकते हो, अगर आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगी। आप पहले क्या करोगे, आप √A को √C से मल्टीप्लाई करोगे, फिर √A को √D से मल्टीप्लाई करोगे, सेम रिटर्न है यहाँ पे। √B को √C से मल्टीप्लाई करोगे और √B को √D से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिटर्न है यहाँ पे। अब √A + √B ब्रैकेट में एंड √C - √D, तो आप इसका भी सेम ऊपर जैसा ही है, बस आपको माइनस प्लस के साइंस को देखना है, तो आप इसका देख सकते हो। √AC हो जाएगा, -√AD हो जाएगा, फिर √BC हो जाएगा, फिर -√BD हो जाएगा। अब √A + √B का होल स्क्वायर, तो A + 2AB + B, ठीक है। तो अब हम किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, हमें रेशनलाइज करने का तरीका जानना है, रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं रेशनलाइज कैसे किया जाएगा। मान लो आपको 1/√7 दिया हो, तो आप इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, ठीक है। तो आप इसको, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, आपको जब हमें रेशनलाइज करना होता है तो वो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई होता है,
तो रूट सेवन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, रूट 7/7 हो जाएगा। जब हम इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 7 जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 डायरेक्टली मिलेगा। तो इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? तो कैसे हम इसको करेंगे? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस का। अगर आपको दे दिया हो 1 रूट 7 माइनस रूट 6, तो आप इसको कैसे रेशनलाइज करोगे? तो आपने यहाँ साइन देखा माइनस है, तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हम करेंगे प्लस का साइन, ठीक है। हम ऊपर नीचे दोनों से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने इसका प्लस का साइन किया, उसके बाद क्या आंसर आएगा? उसके बाद जब हमने रूट 7 माइनस +6 कर दिया, तो नीचे जो होगा रूट 7 + 6 भी होगा, रूट 7 - 6 भी होगा, 2 होंगी ना इधर, क्योंकि एक इधर माइनस का साइन लगा सकते हो आप, प्लस कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हो। तो ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट। अब हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² की। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो, तो रूट 7 एक है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस रूट 6 है एक, हम इसका करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 - 6। तो हमें क्या दिया गया था? 7 + 6, 7 - 6 तो 1 हो गया। तो इसका आंसर इधर से डायरेक्टली आप देख सकते हैं क्या निकलेगा, रूट 7 + रूट 6। इस क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा। तो हम इसी तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं। आप सबको ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके मुझे अभी बता दो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं देख रही हूँ सारे लोग वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो ये गलत बात है। आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो अब देखो, हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम साथ पे करते हैं तो तब रियल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर्स के जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे वही सेम होंगे इरेशनल के लिए भी। तो देखो, पहले हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, तो a m + n। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। तो हमें दिया होगा 6⁵ प्लस मल्टीप्लाइड बाई 6⁴। तो अब ये पावर्स क्या होंगी? ऐड ओपन हो जाएंगी। तो 6⁵ + 4 कितना हो गया? 6⁹ इज इट क्लियर टू यू ऑल? नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है a⁻m ब्रैकेट में n होल पावर जो n, तो a_mn हो जाएगी। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं 7⁵ और होल पावर इसकी 9, तो कितना हो जाएगा? 7⁹ 3 27। सो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल्स टू a - m - n। तो हम इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, 6⁵ कर देते हैं और 6⁵ कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6⁵ - 2, कितना आंसर होगा? 6⁵1। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a⁻m और b⁻m इक्वल्स टू b की होल पावर m। तो मतलब इसमें हमारे जो बेसेस है वो अलग अलग हैं, लेकिन होल पावर क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 7⁵ और 8⁵ तो इनकी पावर सेम है, तो 7 8 करेंगे हम और होल पावर 3। 7 8 होता है 56 की पावर 3। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स। तो अब हम इरेशनल नंबर्स के लिए देखते हैं। ये कुछ थी रेशनल्स के लिए, अब इरेशनल नंबर के लिए।
इरेशनल की भी सेम ही आइडेंटिटीज़ है, बस इसमें जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल होंगे। अब जब हमें रूट, इसमें एक आइडेंटिटी बढ़ जाती है जब हमें रूट देते हैं, ठीक है। मानो एक एग्जांपल लेते हैं हम, रूट ए की पावर m यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a1/m। ये सेम है जैसे हम नेगेटिव नंबर्स के लिए ऊपर करके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं ना, वैसे ही है, ठीक है। तो इनकी भी सेम पावर्स है, तो आप देख सकते हो कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो एक बार एक एग्जांपल दिखाई दे कि आप लोग ये कर ही लोगे। चलो इसका एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो हमने ले लिया 7, कहाँ चला गया, तो हम लेते हैं 7 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 8, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 7 की पावर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी सेम ही है, तो इनके आइडेंटिटीज़ का हमने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए इनके आइडेंटिटीज़ आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे रेशनल नंबर्स का। तो देखो कुछ कुछ नंबर्स होते हैं ना जो डिवाइड नहीं हो सकते। अगर आपको दे दिया जाए 5/8, क्या वो डिवाइड हो पाएगा? 8 से हमें 5 को डिवाइड करना, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन डेसिमल्स में आपका आंसर आएगा। तो हमें वैसे ही इसका एक्सपांशन करना है, डेसिमल्स में बनाना है, ठीक है। तो ये तो सभी कर लोगे। देखो अगर जब आपका डेसिमल एक्सपांशन आप करोगे तो कुछ नंबर्स के बाद जब आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग होंगे तो वो होंगे रेशनल नंबर्स। और जब आप उसको डिवाइड करोगे और अगर आपका आंसर 0 ना आए और वो, तब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर वो रिपीट होता जा रहा है बार बार तब वो रेशनल होंगे। लेकिन अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है तब वो इरेशनल नंबर होंगे। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हो, ये आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये तो 1-2 मार्क्स के आएंगे बस। आप एक एग्जांपल देखो। अब आपको डेसिमल को एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर्स पे, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 0.625 को, तो हमें x को इसकी वैल्यू रख देनी है x, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.625, ठीक है। हमने इसकी यहाँ पे वैल्यू ये रख दी। तो अब इसमें 3 डिजिट्स हैं 0 के बाद, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625/1000। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 5/8। अब आपको जो इरेशनल नंबर्स हैं, अब आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपको ये बताना है कि कोई इरेशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा या फिर कोई भी नंबर पॉइंट में आपको दे दिया जाएगा और आपको उसको कहेंगे कि आप इसको p/q के फॉर्म पे कन्वर्ट करो, मतलब रेशनल नंबर बनाओ। तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 1.042, तो हम x की वैल्यू, x को हम इतना कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें उसकी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 10y, और वेयर y इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर रिक्यूरिंग, तो हम इसको 10y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से करना होगा हमें इसको मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारी एक्सप्रेशन ये दूसरी है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा, तो हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं इसका एग्जांपल, हम लेते हैं 0.3 बार है
बार की मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। तो एक ही डिजिट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको x की वैल्यू 0.3 बार कर देंगे। तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू 3.3 आ जाएगा। अब हमें अपनी दोनों जो इक्वेशन है, हम इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे और जो पहले वाली इक्वेशन थी हम उसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, हमें 10x में से माइनस करना होगा x, पहली इक्वेशन में हमारे पास यही था। और दूसरी तरफ हमें करना होगा 3.3 बार में से माइनस करना होगा 0.3 बार है तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 बचेगा ऑप्शन आपके पास। तो अब हमारे पास क्या बचा, 9x इक्वल्स टू 3 बच गया। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हो जाएगा हमारा 3/9। तो हम इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जितना पॉसिबल हो, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जो भी आपको नहीं समझ आया हो मुझे बताना। बाय।